جب دیکھا چودھری کا مرغا پٹ رہا تھا تو فوراً کود کے چودھری صاحب نے کہا او چھوڑو جی جنگ ختم کرو. یہ سب سے اہم چیز یہ سامنے آئی، اس دفعہ عرب ممالک ہمارے ساتھ نظر نہیں، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. کیوں؟ سمجھ سے بالا تر ہے. کس کی سازش ہے کہ جو انڈیا کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. فارم 47 والوں کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جنگ ہم نے جیتی. اور بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف نے بٹن دبایا. حافظ نعیم الرحمان واحد لیڈر ہے پاکستان کے جو کھل کے بات کر رہے ہیں اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے فاضل نقوی، جسارت نیوز. میں آج کل کے حالت حاضرہ کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں آپ سب سے اہم موضوع انڈیا پاکستان جو ٹینشن ہے یا لائن آف کنٹرول پر جو فائر بندی ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ ڈسکشن ہے. اور ٹرمپ کا عرب ممالک میں دورہ اس وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور تیسرا حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس. اس وقت جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو اس میں ایک ٹرمپ کا بڑا اہم کردار تھا. ٹرمپ نے اس میں بیچ میں آ کر جنگ رکوانے کی کوشش کری. یہ ہمیشہ پرانی بات ہے، کیونکہ انڈیا جو چودھری کا مرغا تھا، چودھری کون تھا؟ امریکہ. چودھری صاحب کا مرغا جب ہارنے لگا تو ٹرمپ صاحب نے فوراً مداخلت کری، جنگ رکوانے کی کوشش کری، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ایک حد تک. دوسرے نقطہ، اس جنگ میں بڑی چیزیں ابھر کر آئی. بہت مقصد ہے کہ دوستی کا اینڈ نظر آیا. اس میں چائنا نے جتنی سپورٹ کری ہمیں ہر معاملے میں، وہ تو اپنی جگہ ہے. اور کیونکہ چائنا کے بھی اپنے مفادات ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور ہمارے بھی مفادات چائنا سے اس لیے ہیں، اور چائنا سے ہماری بہت پرانی دوستی ہے. دوسرے کہ ترکی جتنا کھل کے سامنے اس جنگ میں آیا، اس سے پہلے کوئی مسلم ممالک اس طرح دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. ابھی ایران کی اسرائیل سے بھی جنگ ہوئی، ایران کی مختلف مقامات پر عراق سے جنگ چلتی ہے، وہ آپ کو امریکہ سے بھی جنگ چلتی رہتی ہے، اور کھل کے سامنے نہیں آئے. مگر ترکی ایک واحد مسلم ملک تھا، اور آذربائیجان، جو دو بہت کھل کر سامنے آ گئے دونوں ممالک پاکستان کی سپورٹ پہ. انہوں نے ہر لحاظ سے ہمیں سپورٹ کری. ترکی نے تو اپنی بحریہ بیچ کر ہمارا دل جیت لیا. دوسری چیز یہ اس میں بڑی اہمیت کی حامل یہ تھی کہ اس میں انڈونیشیا، ملیشیا بھی اور بنگلہ دیش بھی شامل ہو گئے جنگ میں، اور یہ سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. چائنا، ترکی، آذربائیجان، بنگلہ دیش، ملیشیا اور انڈونیشیا، یہ تمام 5 سے 6 ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی بڑی مضبوط نظر آئی بنسبت انڈیا کی. انڈیا کے ساتھ کوئی ساتھ کھڑا ہو کر کھل کر سپورٹ کرنے نہیں آئے، خاص طور پہ جو یورپ کی طرف وہ دیکھ رہا تھا، امریکہ کی طرف دیکھ رہا تھا. انہوں نے جب دیکھا چودھری کا مرغا پٹ رہا تھا تو فوراً کود کے چودھری صاحب نے کہا او چھوڑو جی جنگ ختم کرو. یہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے ہمیشہ سے چودھری کے مرغے کا. مگر اس صورتحال میں جو 5 ممالک مسلم، ترکی، انڈونیشیا، آذربائیجان، ملیشیا اور بنگلہ دیش سامنے آ گئے، انہوں نے کھل کر بڑی سپورٹ کری. اس جنگ میں سب سے اہم چیز یہ سامنے آئی، اس دفعہ عرب ممالک ہمارے ساتھ نظر نہیں آئے. جس طرح ہر دفعہ عرب ممالک ہمارے ساتھ، خاص طور پہ برادر ملک ہمارا سعودی عرب، ہمیشہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑا رہا چند سال پہلے تک. مگر اس پوری جنگ میں کہیں اس کا کردار سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے نائب وزیر خارجہ کو بھیج کر معاملات حل کرانے کی کوشش کری، اور جو اس میں وہ ناکام ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے. بڑی اہم بات یہ تھی کہ نائب سیکرٹری انڈیا 10:30 بجے 10 تاریخ کو سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سعودی عرب سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہماری سیز فائر کروا دے، ہمیں اس جنگ رکوا دے. اس میں جو محسوس ہوا، عرب جو سعودی عرب کے پاس جو قربت تھی وہ نظر آئی انڈیا کی، پاکستان کی نہیں نظر آئی. پاکستان کو بہت سپورٹ کرتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، سعودی عرب بہت سے معاملات میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، مگر کھل کر وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا پوری جنگ میں. یہ بڑی پرابلم مجھے محسوس ہوئی. عرب ممالک نے جو ٹرمپ کا جب استقبال کیا، اس سے اور زیادہ چیزیں سامنے آنے لگی، کیونکہ ٹرمپ تو کوئی پہلی بار تھوڑی امریکی پرائم منسٹر پہلی بار یا امریکن پریزیڈنٹ پہلی بار تو نہیں جا رہا نا وہاں پر. اس سے پہلے بھی کئی بار امریکن پریزیڈنٹ گئے ہیں، اوباما گیا ہے، بش گیا ہے،
ट्रम्प अपनी पिछली दफा हुकूमत में कई बार गया है और ट्रम्प इस दफा इस्तकबाल करना। ट्रम्प की पुष्ट पदाई पे खड़े होके 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, कतर ने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, क्या कहते हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्यों? समझ से बालातर है। एक वजह यह कि इनके अरबों डॉलर वहीं हैं, ज्यादातर अमेरिका में ही रिजर्व है, तो इन्होंने एक तरह का इसमें खुलकर इन्होंने उसकी सपोर्ट कर दी कि ये पैसा शो हो जाएगा। दूसरी चीज, उसको थोड़ा सा खतरा ये महसूस हुआ, शाम की सपोर्ट तो कर रहा है सऊदी अरब, मगर तुर्की भी शाम में इन्वॉल्व है। तुर्की का इन्वॉल्व होना है इस वक्त शाम में, अरब ममालिक में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि ये पहला कदम है तुर्की का शाम में। क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के बाद पहली बार तुर्की ने शाम में कदम रखा है और शाम में खुलकर कदम रखा है, और ये इसराइल के लिए भी घंटी बजी है और अरब ममालिक के लिए भी घंटी बजना शुरू हो गई है। अरब ममालिक ने ट्रम्प के जरिए तुर्की को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके साथ हैं और आप हमारा ही साथ दिएगा। ये ट्रम्प का दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। ट्रम्प वो फर्द हैं, पिछले प्रेसिडेंट साहब ने पाबंदी लगाई हुई थी 2000 टन वजनी बम के ऊपर कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे फलस्तीन में। जो ट्रम्प अरब ममालिक में दौरा कर रहा था उस वक्त उसने इंतहाई शदीद बमबारी करी फलस्तीन पे और उन बमों का इस्तेमाल करा, डजनी बम कहलाता है कुछ इस तरह का, वो उस बमों का इस्तेमाल करा जो 1,000 टन और 2,000 टन वजनी बम है। आप ये सोचें क्या हाल हुआ होगा। वहां 300 से 400 शहादतें हुई हैं इन 2-3 रोज में। अल्लाह मियां रहम फरमाए। मतलब एक तरफ अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है और दूसरी तरफ खून बहाया जा रहा है। ट्रम्प चाहे तो एक दिन में जंग खत्म हो सकती है। अगर इसराइल के ऊपर से अमेरिका हाथ हटा दे तो आज इसराइल घंटों की मार है, ये मुस्लिम ममालिक उसे खा जाएंगे, छोटे छोटे ममालिक, ये दुनिया जानती है। और उधर तुर्की आके बैठ गया इसराइल के बॉर्डर पर शाम के जरिए, शाम हुकूमत के जरिए। और तुर्की में 100 साल तकरीबन पुरानी या 50 साल पुरानी जो तहरीक थी कुर्दों की, उन्होंने हथियार भी डाल दिए। तुर्की और मजीद मजबूत हो गया क्योंकि एक इंतशार तो था ना कुर्दों का, उस इंतशार को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया और उन्होंने हथियार डाल दिए और उन्होंने बातचीत का रास्ता इख्तियार कर लिया। इस मौजूआत में आप ये देखें, पूरी जंग में इंडिया पाकिस्तान की अरब ममालिक का कोई किरदार नहीं रहा। इस दफा हमारे दूसरे जो मुस्लिम बिरादर मुल्क थे, बांग्लादेश, तुर्की, आज़रबाईजान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन्होंने हमारा खुल के सपोर्ट करी, हमारी खुलकर हमारा साथ दिया तमाम मामला में। और इंडिया इस पे सोच विचार कर रहा है ये क्या हुआ कि इनके साथ ये 7 ममालिक खड़े हो गए और अरब भी इस टेंशन में आ गए हैं कि उनके मद्दे मुकाबिल ये जो 5-6 रियासत जो ममालिक हैं, इसमें माली तौर पर ये हल्के मुल्क नहीं है। मलेशिया को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, उसकी भी एक अच्छी वर्थ है, अच्छे रिजर्व है। तुर्की के भी अच्छे रिजर्व है, इंडोनेशिया में भी अच्छे रिजर्व है। इंडोनेशिया की मैशत भी बहुत अच्छी है, आज़रबाईजान की मैशत बहुत बेहतर है। ये सब वो ममालिक हैं जो माली तौर पे बेहतर है। दूसरा ये कि हाफिज नईम रहमान की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज या कल में। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया, खासतौर पे फौजी क़यादत से, जो भी डिस्कशन होगा कश्मीर टॉप पे होगा, पानी का मसला टॉप पे होगा, ये प्याज और आलू की सियासत नहीं होगी। नईम रहमान साहब ने कहा, ये बड़ी अहमियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस मुल्क में जो खुल के अभी तक जो बात कर रहे हैं उन रहनुमाओं में हाफिज नईम रहमान से सब बहुत पीछे हैं, चाहे वो इमरान खान हो, मौलाना फजल रहमान हो, वली खान के बेटे साहब हो, ऐमन वली, ये सब आगे पीछे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के घूमते हैं और अपने फायदे उठाते हैं। मगर हाफिज नईम रहमान वाहिद लीडर है पाकिस्तान के जो खुल के बात कर रहे हैं इस वक्त। और उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल उठाया, नवाज शरीफ की खामोशी। नवाज शरीफ की खामोशी क्यों थी जबकि ये पीटीआई का काम था? पीटीआई ने अभी तक असेंबली में ये नहीं उठाया कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की जंग से पहले इंडिया के खिलाफ खामोशी क्यों इख्तियार करी थी। हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि जंग में किसका अहम किरदार था। जो लोग अपने तस्वीरें लगाकर क्रेडिट ले रहे हैं, वो चाहे कराची के
फॉर्म 47 वाले हो या पंजाब के फॉर्म 47 वाले हो, चाहे सरहद के फॉर्म 47 वाले हो, क्रेडिट ले रहे हैं कि जंग हमने जीती। और बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ ने बटन दबाए बकौल उस्मा बुखारी साहब के। आप ये सोचें ना, नवाज शरीफ साहब इस पूरी जंग में क्यों खामोश है? एक वजह तो ये हो सकती है कि उनकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो सुनने में आया है भारत में है, मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, और भारत के साथ वो तिजारती ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। बड़ी अजीब बात, एक अहम बात यह है कि जो तिजारत भारत और पाकिस्तान के दरमियान होती है उसमें 98% इंपोर्ट होता है इंडिया से माल, और 2% टोटल एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से। हमें किस बात का फायदा? हमारे अरबों डॉलर ट्रांसफर हो जाते हैं इंडिया में। ये किसकी साजिश है कि जो इंडिया को मजबूत करना चाहता है? ये सब अच्छी तरह जानते हैं, जबकि हमारी स्टेब्लिशमेंट इसके सख्त खिलाफ है, हमें अंदाजा है। मगर नवाज शरीफ ने जो लास्ट मीटिंग में एपीसी को जो वक्त पे कैंसिल हुई, जो सुनने में आया एपीसी को कैंसिल, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करे कि उन्होंने कहा एपीसी बुलाकर सुनने में आया। और जो बात एपीसी बुलाकर क्या कहते, मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें इमरान खान को भी मदऊ किया जा सकता था, मगर उन्होंने एपीसी नहीं होने दी। ये सब हालात को देखते हुए इंडिया की सपोर्ट पे जो पार्टियां यहाँ पे खड़ी हुई थी और अमेरिका की सपोर्ट पे अमेरिका के आगे हाथ जोड़े हुए थे। बाद लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन्होंने तो कमिटमेंट करी थी कि हमला नहीं करेगा पाकिस्तान, मगर अल्लाह की कुव्वत है और हमारी अफवाज पाकिस्तान है, उसने भरपूर जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने इस मुल्क में एक तारीख रकम कर दी। अफवाज पाकिस्तान ने इस मुल्क की तारीख में एक नया बाब खोल दिया कि ताकतवर के सामने कमजोर आदमी खड़ा हो सकता है। तमाम ममालिक को ये मैसेज भेजा कि कोई भी मुल्क कमजोर नहीं है, कोई भी मुल्क अपाज नहीं है। और अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के जरिए मजलूम फलस्तीनी, मजलूम कश्मीरी, मजलूम अफगानिस्तान के लोगों को मैसेज भेजा कि हम अगर कुव्वत ईमानी रखते हैं तो दुनिया में बड़ी से बड़ी कुव्वत को हरा सकते हैं। और बहुत अफवाज पाकिस्तान पे हमें फख्र है, और पाकिस्तान की अवाम पे सबसे ज्यादा फख्र है। पाकिस्तान की अवाम ने भरपूर तरीके से अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया, इसमें कोई पार्टी बंदी नहीं थी। जबकि सोशल मीडिया पे जो नौजवान तबके ने किरदार अदा किया एक अफवाज की शक्ल में, उसने अफवाज पाकिस्तान ने उसको सराहा और कहा बिला तफरीक तमाम पार्टियों ने सपोर्ट करी हमें। मुझे पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होते हुए नजर आते हैं और इंशाल्लाह मईशत और बेहतर होती नजर आ रही है इस जंग से। जो लोग ये समझ रहे थे कि जंग करने से मईशत खराब हो जाती है, अब आने वाले वक्त में जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी लोग देखते रह जाएंगे। मगर एक दो अहम बात है, इंशाअल्लाह ताला मोदी की तो हुकूमत मुझे जाती हुई नजर आ रही है, और पाकिस्तान में भी हुकूमत मुझे जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत भी बहुत इख्तियार किया कि कमजोरी दिखाई बयानात के हवाले से। बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान के बयानात नजर नहीं आ रहे थे भारत के खिलाफ, मगर अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दे के पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत साबित करा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद।